السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عوام تکلیف میں ہیں، کسی کو فکر نہیں، پھر 1 یونٹ کی سازش کی جا رہی ہے۔ گالم گلوچ کی سیاست سے ہم ذاتی دشمنی تک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں کارکنوں سے خطاب۔ مزید کہا کہ آج جیسا معاشی بحران پہلے کبھی نہیں تھا۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ ان کے مخالف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کابل میں چائے پیتے وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تھا کہ 1 یونٹ ایک بار پھر سے قائم کیا جائے اور مسلسل سلیکٹڈ لڑائی چلتے رہے۔ ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام کروایا۔ آج پاکستان ایک ایسا جگہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا سیاست میں ایک سیاسی بحران ہے۔ ہمارا اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جائزہ لے، جو افغانستان کے حالات ہیں ان کا اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہا ہے، اس کا اثر بھی پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 8 فروری کو سب نکلیں اور شیر پر ٹھپا لگائیں۔ 8 فروری کو شیر دھاڑے گا۔ مریم نواز کا پی پی 159 میں خطاب، کہا لاہوریوں ان گھس بیٹھوں کو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ شیر کو فتح سے ہم کنار کرائیں، آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے۔ ترقی کا پہیہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ شیر کو فتح سے ہم کنار کراؤ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے پہلے کی طرح۔ اور دلم والوں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، کہیں سے میٹرو بس گزر رہی ہے، کہیں سے لال سپیڈو بس گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو نواز شریف، شہباز شریف اور شیر کی خدمت کے نشان نظر آئیں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو لاہور کو بتانا چاہتی ہوں، لاہور میں مسلم لیگ نون نے خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے تھے پچھلے 5 سال میں، جب گھس بیٹھی ہے لاہور میں، گھس کر قبضہ کر لیا، تو دیکھ لو وہ خدمت کے نشان جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی وہ آج بھی وہی ہیں۔ ترقی کا پہیہ آگے نہیں بڑھا تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان گھس بیٹھیوں کو 8 فروری کو اٹھا کے لاہور سے باہر پھینک دینا۔ انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں، لاہور کا کوئی کام نہیں کیا۔ آج لاہور کی سڑکوں پر کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھرنے لگا، پارٹی میں دھڑے بندی عروج پر پہنچ گئی۔ شیر افضل مروت نے صدر عارف الوی کو نشانے پر رکھ لیا، بولے عارف الوی کے بیٹے کو ٹکٹ دینا غلط فیصلہ ہے۔ مزید کہا رؤف بانی چیئرمین کے مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوائے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ الائنس بھی ختم کرایا۔ پاکستان تحریک انصاف میں انتشار، مرکزی قیادت میں پارٹی پر قبضے کی جنگ تیز ہو گئی۔ شیر افضل مروت نے ایک ویڈیو بیان میں صدر عارف الوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عارف الوی کے بیٹے کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کی بھی مخالفت کی۔ شیر افضل مروت اور سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی رؤف حسن کے درمیان اختلافات بھی شدت اختیار کر گئے۔ رؤف حسن نے شیر افضل مروت کی بانی چیئرمین سے ملاقات پر تشویش کا اظہار کیا، جس پر شیر افضل نے ٹویٹ میں کہا رؤف حسن نے بانی چیئرمین کے مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوائے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ الائنس ختم کروایا۔ یہ ایک سازشی ہے اور اکثر پارٹی میں دراریں ڈالنے میں مصروف رہتا ہے۔ رؤف حسن نے پی ٹی آئی کی سندھ میں کامیاب مہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ، لطیف کھوسہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نااہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں۔
पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ मुहिम की पुरजोर मजम्मत। पीटीए और एफआईए से मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को अपने खिलाफ तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा भी किया। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, एक सियासी जमात के वकला ने बगैर तैयारी केस लड़ा, वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने 2 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील एतराज़ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि करोड़ों फॉलोअर्स रखने वाले इल्ज़ाम ज़दा शख्स को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला ले आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने 2 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील एतराज़ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि करोड़ों फॉलोअर्स रखने वाले इल्ज़ाम ज़दा शख्स को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। मिसकंडक्ट करने वाले को 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं। ताहम ये सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला ले आएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन का मज़ीद कहना था कि आइन की मंशा है कि अवाम के नुमाइंदे के लिए सख्त असूल हों। आइन के आर्टिकल 62 और 63 में इसीलिए सख्त असूल वाज़ेह किए गए। आरओ अपनी तसल्ली के बाद कागजात मंजूर या मुस्तरद कर सकता है। सज़ा याफ्ता शख्स के बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील है, वहाँ से फैसला करा लें। बल्ले से महरूम करने का फैसला अदालत का है, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई अमल दखल नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन में मेंबर बलूचिस्तान का पीटीआई वकील से मुकालमा। कहा, जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहें, बहुत कुछ कर सकते थे। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ से बल्ला इलेक्शन कमीशन ने नहीं छीना, अदालत का फैसला है। आप हमें गालियां निकालें तो हम आगे से कुछ ना करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई वकील से मुकालमा। मेंबर सिंध बोले, तो आप इंतखाबी अमले पर हमले क्यों करते हैं? आप बंदूक से आह करते हैं। जेल में जो हुआ इस पर खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे। पीटीआई वकील का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का वावेला। कहा, यह ज्यादती है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। तौहीन इलेक्शन कमीशन की भी कार्रवाई की जा रही है। समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, रहीम यार खान में 150 लोगों पर पर्चे काट दिए गए। मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बैलेट पेपर्स की छपाई का आगाज हो गया, इंतखाबी निशानात तब्दील ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज को हिदायत कर दी। साफ कह दिया कि बैलेट पेपर्स की छपाई के मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन नहीं। तब्दीली लाजमी हो तो पेश की इजाज़त ली जाए। इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके, बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। आजाद उम्मीदवार अब अपने इंतखाबी निशान तब्दील नहीं करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कहा, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए कवायद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को भिजवा दिए। आरओज इस मरहले पर इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए 146, आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशान मुख्तस किए हैं। बलूचिस्तान और सिंध के बैलेट पेपर्स की छपाई कराची में हो रही है। पहले बलूचिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग होगी। पंजाब और केपी के बैलेट पेपर्स की छपाई प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में होगी। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। इस्लामाबाद में प्रेस का कारोबार चल पड़ा है। पार्टी झंडे और बैनर्स छपने शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और पार्टी स्टिकर्स बनवा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। और आलिजा, बताएगा कि इलेक्शन की तैयारियाँ किस तरह की जा रही हैं? इंतखाबात 2024 में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, उसी के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। इलेक्शन की गहमा गहमी हर तरफ हमें नज़र आ रही है। इस वक्त हम एक प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का काम बढ़ गया है। लोग यहाँ पर पैनाफ्लेक्सिस बनवा रहे हैं, ब्रोशर्स बना रहे हैं और दीगर चीज़ें भी छपवा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं भाईजान किस कदर काम में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? काम बढ़ा है पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले से काफ़ी काम बढ़ गया है। मार्केटों में पहले इतना काम नहीं था, लेकिन इलेक्शन की वजह से काम बहुत अच्छा हो गया है। बहुत गहमा गहमी है। लोग बैनर बनवा रहे हैं, इश्तिहार बनवा रहे हैं, स्टिकर बनवा रहे हैं, बैज बनवा रहे हैं। अब काम बेहतर हो गया है। इंशाल्लाह काम बेहतरी की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि रेट्स में भी कुछ इजाफा हुआ है? क्योंकि डिमांड बढ़ी है, तो ये स्टिकर्स, ब्रोशर्स, इन चीज़ों के रेट्स में भी कोई इजाफा हुआ है? नहीं, रेट तो वही चल रहे हैं, इजाफा नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि काम थोड़ी बेहतरी है काम में।
स्टिकर्स बनवा रहे हैं, पार्टी के झंडे छपाए जा रहे हैं, ब्रोशर्स बनाए जा रहे हैं, पैनाफ्लेक्सेस बनवाई जा रही हैं और स्टैंडीज भी बनाई जा रही हैं। तो इलेक्शन गहमा गहमी अरूज पर है और उसी के पेश नज़र इन लोगों का काम भी बढ़ गया है। लोधरा में चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन ने कहा, वज़ीर आज़म की कुर्सी बहुत ख़तरनाक है। बादशाह समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, कुर्सी पर बैठते ही लोग आवाम को भूल जाते हैं। 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया, मगर जब वो साहब वज़ीर आज़म बने तो सब कुछ बदल गया। नई पार्टी इसलिए बनाई कि आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नई पार्टी क्यों बनाई? पहले PTI के वास्ते 10-12 साल मैं दिन रात मेहनत करते, मगर वो जो लीडर साहब हैं वो जो कुर्सी से बह गए ना वज़ीर आज़म दी, वाल बिल्कुल कम बदल। ये कुर्सी है ना वज़ीर आज़म वाली, ये खतरनाक है। मैं तो सारे को आखना बाबा तो वज़ीर आज़म बढ़ना, कुर्सी से बाहर बह ना, खड़ा रहे, कम कर, कुर्सी तो ना पाए। उसका वांचते लोग उसका एक तरीका कार है। आप तो बह बंदे तो लोग हर पास आ बंदे तो जनाब तुम्हारी तारीफ आते पुल बस तुम बादशाह हो, तुम फलाने हो, तो बंदा आते भाई हर शय यार मैं वज़ीर आज़म नंबर 1 बंदा पाकिस्तान में, मैं अपनी मर्जी करूँगी। भूल में दो कि तले जो बंदे तो वज़ीर आज़म बनाए उन्हों का हक तेरे उत्ते ज़्यादा है। लीडर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मार्शल हो या जमहूरी दौर, ये चंद करप्ट टोले हर दौर में आवाम पर मुसल्लत रहे हैं। इसकी वजह से बदअमनी है, मईशत तबाह है, बेरोज़गारी है, जुल्म व ज़िल्लत का दौर है। जमात इस्लामी हर कीमत पर 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। पूरे जज्बे के साथ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टीज ने नैब से केस ख़त्म करवाए और बैंक अकाउंट में इजाफा किया। जिस पार्टी ने भी वज़ीर आज़म बनाना है उसे MKM के वोट की ज़रूरत पड़ेगी। अवाम ने MKM के मंशूर को पसंद किया है। हमारा मकसद लोगों को बाइख्तियार बनाना है। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत में आकर 10 साल के लिए तालीम और सेहत की एमरजेंसी लगाएंगे। हमने वजारतों नहीं आइन में तरमीम की बात की है। हमारा मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का 1 पॉइंट एजेंडा है। दर्सगाहों में इस करिकुलम में हम वो निज़ाम और वो सिस्टम वो तालीम लेकर आना चाहते हैं जिससे हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें। तो जो जीत कर आता है असेंबली में, चाहे वो पीपल्स पार्टी आए, PTI आए, PMLN आए, वो आए और हम अगर उन्हें हमें हमारी हिमायत चाहिए, हमारी हिमायत ये इस कॉस्ट पे हम उनको देंगे कि वो आईनी तरमीम की हिमायत करें। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनकी वजह से ये सारा मंजरनामा है, वो आज पंजाब को फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अगर तो हम ये कह सकते हैं कराची वालों को और पूरे पाकिस्तान वालों को, हमें एक दफ़ा वोट दो, हम पूरे पाकिस्तान को वैसे ही बना देंगे जैसे हमने कराची को 2005 से 2010 तक बनाकर दिखाया था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना ज़रूर है, लेकिन उम्मीदवार कहाँ हैं? खुर्शीद शाह का सवाल। कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, उसमें इबहम नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो सब नताइज कबूल करेंगे। इलेक्शन कमीशन और मुक़्तदर इदारों की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात हों। कि बल्ला छीना जाए तो फिर हम निकलें, ये उनका शायद मुतालबा था। हम ये चाहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर बल्ला नहीं मिला है तब भी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। उन लोगों ने अपने केस को सही माना में प्लीड नहीं किया। मैं आगे तो नहीं कहता कुछ, मगर ये एक पार्टी का काम नहीं है, ये कम से कम 3 पार्टियाँ होंगी तब जाके हुकूमत बनेगी। इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए, UN भी रेजोल्यूशन पास कर दे इलेक्शन 8 फरवरी को। मेरे ख्याल में इलेक्शन अभी इंडिपेंडेंट करने चाहिए, आज़ाद माहौल में करने चाहिए। ज़्यादती और दबाव को नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। नया पाकिस्तान नहीं बन सका, बिलावल अच्छा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PP रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब कराने के लिए अवाम एक है। आइन की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद जारी है। ढारस पहुंचती है कि बिलावल साहब के मोहब्बत में आपने सब कुछ भुलाकर बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए
सर जोड़ लिया है कि जो हो गया 18 में सो हो गया। जो भी मुखालिफ थे उनको साबित करके दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखने वाली एक पार्टी है जिसका जिम्मा है कि आइन बनाया था तो आइन को। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हल्का NA 232 जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। हल्के के मकीनों को किन मसाइल का सामना है, इसी हवाले से बात करते हैं अब्दुल हसीब खान से। बताइए अब्दुल हसीब। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का NA 232। इस हल्के की आबादी की अगर बात करें 10,83,000 से ज़ायद नफूस जो हैं वो इस हल्के में जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 5,94,000 से ज़ायद है। यहाँ पर जो मसाइल के हवाले से कुछ यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि लोगों का क्या कहना है। लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, सिस्टम ख़राब हो चुका है और जो उसके अंदर तरक्की होनी थी वो बिल्कुल रुक चुकी है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई उरूज पे जा रही है, करप्शन उरूज पे जा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। ये देखें आप, हमने अपने बचपन से लेकर 55 हो गए अभी, हमने यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं देखे और अल्लाह ताला से उम्मीद यही करते हैं कोई ऐसा बंदा आए जो यहाँ के हमारे मसाइल हल करे। 5 साल 6 साल बाद इनको ख्याल आता है वोट के लिए तो हमारे दरवाज़ा खटखटाते हैं। किसी बड़े सियासतदान ने दरवाज़ा खटा के पूछा कि किसी का चूल्हा जला। सिर्फ मसाइल का जिक्र करते हैं बल्कि साथ साथ इस उम्मीद का भी जिक्र करते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद जो है वो इस हल्के की किस्मत तब्दील होगी और लोगों के जो है वो मसाइल वो आखिर हल होंगे। अरब इमारात की जानिब से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान, कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़जाना की कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात से रिलीफ की उम्मीद। $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। UAE को $1 अरब पर 3% और दूसरे पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना की कर्ज रोल ओवर करने के लिए बातचीत जारी है। रवां हफ्ते के दौरान कर्ज मौखर होने की लिए उम्मीद है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कर्ज रोल ओवर करने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के सदर को खत लिखा था। कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। बिजली की कीमत बढ़ने का इम्कान, इजाफा दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। समाअत 31 जनवरी को होगी। बिजली का झटका, कीमतों में इजाफे की तैयारियां। बिजली फी यूनिट ₹5.62 महंगी होने का इम्कान। CPPA के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त। इजाफा दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। अथॉरिटी दरखास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। मौसम की बात करेंगे तो दिन में गर्मी है, रात में सर्दी। कराची का मौसम बदल गया। शहर में अचानक गर्मी की क्या वजह है, मरियम हसन से जानते हैं। बोहरा अरब में हाई प्रेशर, कराची में सर्दी को ब्रेक लग गया। दिन में पारा चढ़ने लगा। शहर में शुमाल मशरकी सर्द हवाओं की जगह जुनूब मगरबी हवाओं ने ले ली। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाने लगी। माहिर मौसमियात जवाद मेमन का कहना है ये सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी को फिर टॉप गियर लगेगा। अगले 36 से 48 घंटों बाद जैसे ही ये हाई प्रेशर सिस्टम बहरा अरब से निकलेगा, शहर कराची में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सर्दियां एक बार फिर शहर कराची की तरफ लौट आएंगी। साथ ही साथ जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक मुल्क की ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम आने के एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिसके ज़ेर असर शहर कराची में भी जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर बारिशें मुमकिन हैं। शहर का फजाई मेयार भी मुज़रे सेहत है। फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 185 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की है। अमेरिका में शदीद सर्दी की लहर जारी है। ठंड और बर्फबारी के सबब लोग घरों में बंद हो गए हैं। ह्यूस्टन में दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात पर पहुंच गया, जबकि पोर्टलैंड में भी शदीद सर्द मौसम ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए हैं।
अमरीकी शहर ह्यूस्टन में ठंड ने शिद्दत पकड़ ली। पीर से शुरू होने वाली सर्द लहर मंगल को भी जारी रही। ठंडी ठार हवाओं और बर्फबारी के सबब लोग घरों तक महदूद हो गए। तालीमी इदारों में 2 दिन की तातील का ऐलान कर दिया गया। बेशतर सरकारी और निजी दफातर में भी हाजिरी न होने के बराबर रही। सड़कों पर बर्फ जम जाने के सबब सैकड़ों गाड़ियां हादसात का शिकार हुई। मरकजी शाहराहों को बंद कर दिया गया। उधर शदीद ठंड से पानी की लाइनें फटने का खदशा भी पैदा हो गया। पोर्टलैंड में भी बारिश और बर्फबारी के संगम ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए। मेम्फिस में शदीद ठंड से महफूज रखने के लिए वार्मिंग सेंटर भी खोल दिए गए हैं। और अब गजा की सूरत हाल की बात करेंगे तो यमन के हौसी जंगजुओं ने बहर अहमर में एक अमरीकी मालबरदार जहाज पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद जंग फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। कतर ने कहा है कि वो अपना तेल और गैस बहर अहमर के रास्ते बरामद नहीं करेगा। अमरीकी जहाज पर मिसाइल हमला, कतर ने गैस तरसील रोक दी। यमन के हौसी जंगजुओं ने बहर अहमर में एक अमरीकी माल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद जंग फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक हमले से जाहिर होता है कि अमरीका और बरतानिया की बमबारी के बावजूद हौसियों की माल बरदार जहाजों पर हमले करने की सलाहियत बरकरार है। मशरक़ वस्ता अमरीका के हाथ से निकल चुका है। यमन के जंगजुओं ने गजा पर इजरायली बमबारी के रद्द अमल में बहर अहमर में माल बरदार जहाजों और बहरी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में बहर अहमर से समंदरी तिजारत कम हो गई है। ताज़ा तरीन ऐलान कतर की जानिब से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपना तेल और गैस बहर अहमर के रास्ते बरामद नहीं करेगा। गुज़श्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 132 हो गई। मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस की कार्रवाइयों में 5 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। गजा में जारी इजरायली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 60,317 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि जनूबी गजा में फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म होने वाला है। जंग ख़त्म होने के बाद गजा की क़यादत फ़लस्तीनियों के हाथ में होगी। गजा में फ़लस्तीनी आबादी है, इसलिए मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनियों को ही हुकूमत करना होगी। गजा में इसराइली बमबारी ताहाल जारी। भूख, बीमारियों का राज, नकल मकानी करने वाले सर्दी से ठिठुरने लगे। तूफान का भी खतरा। इसराइल ने गजा में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात इसराइल ने गजा में लड़ने वाली 4 में से 1 डिवीजन फौज को वापस बुला लिया, जो मुख्तसर वक्फे के बाद ताज़ा दम होकर फिर तैनात होंगी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि जंग के बाद फलस्तीनी ही गजा की हुकूमत चलाएंगे। खान यूनुस में हमास की सहूनी फौज से झड़पें जारी। काबिज इसराइली फौज ने नाबुलस यूनिवर्सिटी से मुतादिद फलस्तीनी तलबा गिरफ्तार कर लिए। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई। तेल अबीब के नजदीक यहूदी बस्ती पर हमले के नतीजे में 1 इसराइली हलाक जबकि 18 जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने हमले के शुबे में 2 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहीद 24,000 फलस्तीनियों में हजारों बच्चे और खवातीन भी। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए एहतजाज जारी है। हज़ारों अफराद ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और फ़लस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के मामले पर बरतानवी हुकूमत अपनी आवाम की नुमाइंदा नहीं। अगर हकीकत जाननी हो तो लंदन के एक आम कचरा उठाने वाले शख्स से पूछें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बरतानवी व्लॉगर लोगों से उनकी ज़िंदगी के बड़े ख्वाब को जानने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान एक शख्स ने अपना ख्वाब बताकर देखने और सुनने वालों की आंखें नम कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत आयोवा में होने वाले मारूफ सियासी मुबाहिसे आईवॉक्स का जीत लिया। मुकाबले को ट्रंप की इंतखाबी दौड़ के लिए अहम समझा जा रहा है। ट्रंप इस अहम बैलेट के बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुसलसल तीसरी नामजदगी हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप के हिस्से में आने वाली इस कामयाबी से साबिक सदर और वोटर्स के दरमियान ताल्लुक की मजबूती साबित हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों कई कानूनी मसाइल का सामना है जो उनके व्हाइट हाउस पहुंचने की राह में रुकावट ख्याल किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुसलसल तीसरी नामजदगी हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप के हिस्से में आने वाली इस कामयाबी से साबिक सदर और वोटर्स के दरमियान ताल्लुक की मजबूती साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों कई कानूनी मसाइल का सामना है जो इनके व्हाइट हाउस पहुंचने की राह में रुकावट ख्याल किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2002 में भी आयोवा कॉकसेस में 97% वोट हासिल किए थे। मोदी सरकार का ड्रोन प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया। मोदी सरकार को एक बार फिर बगैर पायलट जहाज की नाकामी की वजह UAV से मुंह की खानी पड़ी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के मैन होल में गिरने वाले दोनों अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकरूब थे। एक को डूबता देखकर दूसरा मदद के लिए गया था। लाशें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार से। बताइएगा खुरम।
بالکل یہ گلستان جوہر ذیشان اپارٹمنٹ کے قریب ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں سیوریج لائن میں 2 خاکروب ہیں وہ ڈوب کر اس پہ جاں بحق ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ خاکروبوں کو اپارٹمنٹ کے رہائشیوں نے سیوریج لائن کو کھولنے کے لیے بلایا گیا تھا پرائیویٹ طور پہ, اور اس کے بعد جو یہ حادثہ رونا ہوا. پہلے جو خاکروب تھا وہ اس حادثے میں اندر ڈوبا جس کو بچانے کے اس کا دوسرا ساتھی بھی جب اس کو بچانے کی کوشش کی تو وہ دوسرا ساتھی بھی اس مین ہول میں ڈوبا ہے جسے وہاں موجود جو لوگوں نے پہلے نکالنے کی کوشش کی, جس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو 112 کا عملہ جو ہے وہ موقع پہ پہنچا اور ان دونوں خاکروبوں کو تشویشناک حالت میں جو ہے وہ نکالا گیا, جس کے بعد وہ جاں بحق نہ ہو سکے. دونوں جاں بحق ہونے والے کی لاشوں کو جو ہے وہ جن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تاج شناخت نہیں ہو سکی ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا خرم. پاور ڈویژن کا صنعت کی سہولت کے لیے انڈسٹری ٹیرف پر نظر ثانی کا فیصلہ. صنعتی ٹیرف کو 9 سینٹ پر لانے کے لیے ورکنگ مکمل. سیکریٹری پاور ڈویژن انڈسٹری چلانے کے لیے ٹیرف پر نظر ثانی ضروری ہے. سیکریٹری پاور ڈویژن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صنعت کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا. مزید کہا کہ مختلف اداروں کے درمیان سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بھی حل ہوگا. ملک سعید آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. ملک سعید, مزید کیا اپڈیٹس آپ کے پاس؟ یہ پاور کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس چل رہا ہے جس میں پاور ڈویژن کا صنعت کی سہولت کے لیے انڈسٹری ٹیرف پر ثانی کا فیصلہ کیا گیا. صنعتی ٹیرف کو جو ہے 9 سینٹ پر لانے کے لیے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے. سیکریٹری پاور کا یہ بتانا تھا کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ٹیرف پر نظرثانی ضروری ہے. صنعت کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا. مختلف اداروں کے درمیان سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بھی حل ہوگا. قائمہ کمیٹی نے پاور سیکٹر میں جلدی شکست سے متعلق تفصیلات طلب کر لی ہیں. اس کے علاوہ سیکٹری سدانہ آئندہ اجلاس میں طلب کیے گئے ہیں کہ وہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کمیٹی کو آگاہ کرے. کمیٹی میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاور ڈویژن کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے فنڈ کی عدم فراہمی ہو رہی ہے. بجلی کی بحالی, پورٹ کی مرمت, میٹرز کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں. فنانس ڈویژن کی جانب سے فنڈ کی فراہمی نہیں ہوتی. فیکٹری پاور ڈویژن کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ بتایا جاتا ہے کہ IMF شرائط کے تحت فنڈ نہیں مل سکتے. مختلف امور کے لیے فنڈ ہوں گے تو کام بھی ہوں گے. قائمہ کمیٹی برائے پاور کا جو آئندہ اجلاس ہے اس میں سیکٹری فنانس کو بلانے کا دعوت جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فنڈ کی فراہمی پر سیکٹری فنانس کمیٹی کو بریفنگ دے. پاور ڈویژن کے فنڈ کے معاملے پر جو ہے وہ بالکل سیکریٹری پاور ڈویژن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ٹیرف پر نظر ثانی ضروری ہے. ملک سعید آوان ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ جماعتوں میں شامل الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت 166 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں. گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا تھا. اسی حوالے سے فہد چودھری سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. فہد, تحریک انصاف کا نام شامل ہے رجسٹرڈ جماعتوں میں؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر نئی لسٹ اپلوڈ کی گئی ہے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی, جس میں تحریک انصاف کا نام شامل ہے, لیکن چیئرمین کا جو خانہ ہے وہ خالی ہے کیونکہ انٹر پارٹی الیکشنز کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن مسترد کر چکا تھا. 166 جماعتیں نئی فہرست میں شامل ہیں, جبکہ اس سے پہلے کچھ روز قبل الیکشن کمیشن 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر چکا ہے اور اب 166 رجسٹرڈ جماعتوں کی جو فہرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا فہد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.